गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइजोसोम्स तक कर लिया था। उससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और लाइजोसोम, जहाँ पे मैंने आपको बताया था हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्म। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द एक्सटेंशंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स गोल्गी एपरेटस एंड देन गोल्गी एपरेटस फॉर्म्स लाइजोसोम्स। ओके, सो इट्स अ वन कंप्लीट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम तीनों कनेक्टेड होते हैं, एक ही जगह से बन के आ रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हेंस हम उसको नाम देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, and at the end we discussed about the lysosome, that why they are called as suicidal bags. This is the usually asked question. When the cell is not functioning properly or it is damaged, then the lysosomes burst themselves, releasing the digestive enzymes that they carry, and hence they digest their own full cell. So the cell is not now remaining, it is dead now, it is finished, it is digested by the digestive enzymes secreted by lysosomes, hence they are called as suicidal bags. Okay, so today we are going to start with the next organelle, that is mitochondria and plastids and vacuoles. Now these are the two most important organelles in the cell. Why? We will study it in detail just now. So let us start with mitochondria. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell. Now why it is called as the powerhouse of the cell? Because I am just writing it down. It is called as powerhouse of the cell because it can store, or let's say first it can produce as well as store energy in the form of ATP. Okay, hence it is called as the powerhouse of the cell. Why so? Because ATP is the form of energy जो हमारी बॉडी में अवेलेबल होती है. If let's say you need to do work, you need to move, you need to run, whatever, you need energy. So that energy is provided in your body in the form of ATP that is produced inside the mitochondria, and major energy is produced inside mitochondria. Outside mitochondria energy is also produced but very little amount. Okay, so major energy production takes place inside the mitochondria, and hence it produces as well as stores energy in the form of ATP, hence it is called as powerhouse of the cell. Okay, now mitochondria has two membranes. These two membranes are called as the outer membrane and the inner membrane. Let me show you the figure of this first. This is the figure of mitochondria. You can see two membranes. This is the outer membrane, this red portion. Okay, this is written here, outer membrane, and then you can see this yellow colored lining. This is the inner membrane. Now if you see it very carefully, so this inner membrane is folded like this. Irregular folds हैं यहाँ पे like this. These irregular folds formed by the outer membrane, these are called as cristae. Okay, these are called as cristae, and on these cristae ATP सिंथेसिस पार्टिकल्स, मतलब ATP बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इस क्रिस्टे के ऊपर लोकेटेड होते हैं. आई रिपीट, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. उसके पास दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. पोरस का मतलब बड़े बड़े पोर्स होते हैं वहाँ पे, जिससे बहुत सारी चीज़ें अंदर बाहर जा सकती हैं. ठीक है, बट द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज क्रिस्टे, एंड दीज क्रिस्टे बियर ATP synthesizing particles. Okay, these cristae bears ATP synthesizing particles. Okay, then you can see within the mitochondria that there is a DNA also. Now one DNA you studied in the nucleus, that is the main DNA of the cell that governs the whole cell, but there are two more organelles, that is mitochondria and chloroplast, that also contain its own DNA. Okay, although this DNA is not same as the DNA present in our cell. This DNA is a primitive form of DNA which is present in the prokaryotic cell. Okay, circular DNA, what you say. So although it bears DNA as well as ribosomes, ribosomes are also prokaryotic type, hence this mitochondria as well as plastid, the next organelle that we are going to study, are called as semi-autonomous organelles. Okay, so let me repeat it once more. Mitochondria contains its own DNA, that is deoxyribonucleic acid, as well as ribosomes, hence it is called as the semi-autonomous organelle, or you can call it as the independent organelle of the cell. Why it is independent? Because since it contains its own DNA, so hence own DNA and ribosome, hence it can form its own protein. It is not dependent on the cell for its own protein requirement. Hence
जब वो खुद अपना प्रोटीन बना सकता है तो वो इंडिपेंडेंट हो गया। जब आप खुद कोई काम करते हो तो आप इंडिपेंडेंट कहलाते हो। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया जो अपना प्रोटीन खुद बना सकता है तो उस टर्म्स में वो इंडिपेंडेंट हो गया। और वो प्रोटीन क्यों बना पा रहा है? बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन DNA एज वेल एज द राइबोसोम। ओके, आई होप आई एम क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ दीज फोल्ड्स, अब इन फोल्ड्स का काम क्या होता है? जो अभी मैंने आपको क्रिस्टे बताए, ये क्रिस्टे क्या करते हैं? ये क्रिस्टे सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ATP बनाने वाले पार्टिकल्स होंगे, एंड उतना ज़्यादा हम ATP बना पाते हैं। ठीक है, तो हेंस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्या है? इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, किस में? इरेगुलर फोल्ड्स में, जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा क्या बियर करता है? क्रिस्टा बियर करता है ATP बनाने वाले पार्टिकल्स, ATP सिंथेसाइजिंग पार्टिकल्स। एंड सिंस क्रिस्टा इज फोल्डेड तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वो ATP प्रोडक्शन कर पाएगा। ओके, एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, और जो भी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है जिसको हम ATP के फॉर्म में, ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज ATP? इट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि वो स्टोर भी करता है, और साथ साथ अगर कहीं बॉडी में सेल को ज़रूरत है, कोई रिएक्शन करने के लिए ATP की ज़रूरत है, तो वो भी वो कर सकता है। ठीक है, हेंस ATP को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आई होप देयर इज़ नो डाउट। नाउ जो भी एनर्जी करेंसी हमने बनाया, बॉडी उसको यूज़ करेगी मैकेनिकल वर्क करने के लिए, केमिकल वर्क करने के लिए, कुछ चीज़ें बनानी है, कुछ चीज़ें तोड़नी है, तो दोनों तरीके से हम ATP को यूज़ कर सकते हैं फॉर मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल वर्क। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी। माइटोकॉन्ड्रिया strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Now since they have their own DNA and ribosomes, and they are able to make their own proteins also, hence mitochondria are called as semi-autonomous organelles. Okay, now why we are calling it as semi-autonomous? Why not fully autonomous? Because it is dependent, it is independent on the cell for its requirement. Let's say उसको प्रोटीन चाहिए तो वो खुद ही बना सकता है, वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन फिर वो सेमी क्यों है? हाफ डिपेंडेंट, हाफ इंडिपेंडेंट, हाफ डिपेंडेंट क्यों है? बिकॉज वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर इट्स डिवीजन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा बनना है तो वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया को अपना प्रोटीन बनाना है तो वो सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। हेंस इट इज़ कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, मतलब हाफ डिपेंडेंट है और हाफ इंडिपेंडेंट है। ओके, सो दिस वाज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स को भी हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मैं इसको भी आपको मार्क करके दे रहा हूँ। अगेन सेम रीज़न, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस because they can synthesize their own proteins. ठीक है, they are also called as semi-autonomous organelles. The reason is same, since they can form their own proteins, they have their own DNA as well as their ribosomes, hence they can form their own proteins, hence it is called as semi-autonomous organelles. Okay, अब चलते हैं प्लास्टिड्स के बारे में, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं प्लास्टिड्स क्या है, किस तरीके से हमको मिलते हैं। Now plastids are present only in plant cells. Why? Because photosynthesis सिर्फ plants ही कर सकते हैं, animals नहीं कर सकते। क्लियर? तो hence plastids सिर्फ हमको plant cells में ही मिलते हैं। plastids बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दैट इज क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है कलर्ड, क्रोमो मीन्स कलर्ड, क्रोमो मीन्स कलर्ड। ओके, तो हेंस हम इसको क्या लेते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स, दैट इज द प्लास्टिड्स दैट कंटेन पिगमेंट। द प्लास्टिड्स दैट कंटेन पिगमेंट आर कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एंड अगर वो क्रोमोप्लास्ट, इफ इट इज कंटेनिंग ग्रीन कलर पिगमेंट, और आई कैन से क्लोरोफिल, इफ क्रोमोप्लास्ट इज कंटेनिंग क्लोरोफिल देन इट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल में उसका कोई यूज़ नहीं होता, हेंस वहाँ पे नहीं होते हैं।
एंड प्लास्टिड्स दो मेजर टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड पिगमेंट्स एंड ल्यूकोप्लास्ट आर द वाइट और कलरलेस पिगमेंट्स जो कि स्टोरेज का काम करते हैं. ठीक है, जस्ट लेट मी राइट इट डाउन. ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन करते हैं, दे आर द स्टोरेज पार्ट्स और स्टोरेज प्लास्टिड्स. ठीक है, जो कि चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं. क्लियर? चलो, तो क्रोमोप्लास्ट, अगर किसी क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोफिल इज एन इम्पॉर्टेंट पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. हेंस क्लोरोप्लास्ट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा और भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे येलो और ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स भी होते हैं. इन येलो और ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स को हम नाम देते हैं ज़ैंथोफिल्स. ठीक है, क्या नाम देते हैं? ज़ैंथोफिल्स. ज़ैंथोफिल्स या फिर एक और आप बोल सकते हो कैरोटीनॉइड्स. ठीक है, कैरोटीनॉइड जैसे फ्रूट में कलर हो गया, लीफ में कलर हो गया, वहाँ पे कैरोटीनॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर एग्जांपल टोमेटो का रेड कलर इज बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स. ठीक है, देन येलो कलर जहाँ पे भी आपको लीफ में मिलता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ ज़ैंथोफिल्स. तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के साथ साथ कुछ येलो और ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स भी कैरी करते हैं. ठीक है, येलो और ऑरेंज कलर पिगमेंट्स कौन से हो गए? ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स. और ग्रीन कलर पिगमेंट कौन सा हो गया? क्लोरोफिल. ओके, नाउ ल्यूकोप्लास्ट कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो कि मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करते हैं. ठीक है, मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करते हैं. इफ़ ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स, मैं सबके इंडिविजुअल नाम आपको लिख के दे रहा हूँ. स्टार्च स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट, स्टार्च स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट. Just wait for a minute. Starch storing leucoplasts are known as amyloplast. Okay, starch storing leucoplasts are known as amyloplast. Okay, then oil storing leucoplasts are known as eleoplast. Okay, then protein storing leucoplasts are known as eleuroplast. Okay, तो ये डिफरेंट टाइप्स के. अब ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या हो गया? वो चीज़ों को स्टोर करता है. अगर वो स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो हम उसको अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं. अगर वो ऑयल को स्टोर कर रहा है तो हम उसको इलेयोप्लास्ट बोलते हैं. और अगर वो प्रोटीन को स्टोर कर रहा है तो हम उसको एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं. ठीक है, सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होते हैं. प्लास्टिड 2 टाइप के, क्रोमो एंड क्लोरो. क्रोमो वर्ड मतलब होता है कलर्ड, तो हम कलर्ड प्लास्टिड्स बोलते हैं. एंड ल्यूको काम करता है वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं. ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर फिर आपने पढ़ा कि अगर उस क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हम उसको एक टाइप बोल देते हैं, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के अलावा कभी कभी येलो और ऑरेंज और येलो पिगमेंट्स भी स्टोर करते हैं, जिसको हम ज़ैंथोफिल्स या कैरोटीनॉइड्स बोल सकते हैं, जो कि अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं. क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ज़ैंथोफिल्स येलोइश कलर, ऑरेंजिश कलर, एंड कैरोटीनॉइड्स ऑरेंजिश रेड कलर. ठीक है, देन फिर हम आते हैं ल्यूकोप्लास्ट पे. ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स हैं जो चीज़ों को स्टोर करने का काम करते हैं. ना वो क्या स्टोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम उसको नाम दे देते हैं. इफ़ इट इज़ स्टोरिंग स्टार्च तो मैंने बोल दिया माइलोप्लास्ट. इफ़ इट इज़ स्टोरिंग ऑयल तो मैंने बोल दिया इलेयोप्लास्ट. एंड इफ़ इट इज़ स्टोरिंग प्रोटीन देन इट इज़ कॉल्ड एज एल्यूरोप्लास्ट. ओके, देन लास्ट पैराग्राफ चलते हैं प्लास्टिड्स के. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा. ठीक है, अब मैं आपको एक बार एक प्लास्टिड्स का फिगर दिखाता हूँ. लेट्स सी. सी, दिस इज़ अ प्लास्टिड स्ट्रक्चर. आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्ट्रोमा प्रेजेंट है. दिस इज़ अ स्ट्रोमा जहाँ पे लिखा है एक्वस फ्लूइड. देन अगेन जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे
दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी दो मेम्ब्रेन है हमारे पास, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड थी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों कोई फोल्डिंग शो नहीं करते हैं। देन उसके अंदर आप देख रहे हो स्ट्रोमा एक जगह है। स्ट्रोमा क्या होती है? ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब जैसे आपके घर की ज़मीन है जिस पे आप चल रहे हो, आपका सामान रखा है, तो वो ग्राउंड सब्सटेंस है। उस ग्राउंड सब्सटेंस के ऊपर या एक्वस फ्लूइड के ऊपर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लाइक ग्रैनम, थाइलेकोइड। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ अ ग्रैनम? ग्रैनम एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इंडिविजुअल, ये खाली अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूँ, दिस वन वेयर द कर्सर इज प्रेजेंट, सो दिस इज कॉल्ड एज थाइलेकोइड, ओके। जब ये थाइलेकोइड बहुत सारे अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाइल ऑफ कॉइन्स, जैसे आपने 10 कॉइन लिए, उसको एक के ऊपर एक प्लेस कर दिया, तो एक कॉइन एक थाइलेकोइड था, मैंने 10 थाइलेकोइड को एक साथ प्लेस कर दिया, तो पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्रैनम। दैट इज दिस होल स्ट्रक्चर, जो सर्कल यहाँ बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रैनम, विच इज कॉल्ड एज स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स। क्लियर? नाउ दिस थाइलेकोइड एक्चुअली बियर्स द क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये जो हम देख रहे हैं, थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल फिर हमको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ अभी जब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड प्रेजेंट है, थाइलेकोइड के अंदर क्या है? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है। नाउ जैसा आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इन द सेम मैनर क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स ऑल्सो कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। क्लियर? हेंस हमने उसको नाम दे दिया, इट इज़ एन सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्लियर? सो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मैंने आपको बताया, इट इज़ अ ग्राउंड सब्सटेंस जहाँ पे सारी चीज़ें प्लेस्ड होती हैं, जैसे आपने देखा थाइलेकोइड, ग्रैनम, ये सब वहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रियल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दैट इज इसके पास भी 2 लेयर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी 2 लेयर होते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे इनर लेयर फोल्डेड होता है, यहाँ पे इनर फोल्डेड नहीं होता, ठीक है। सो लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे, दैट इज कॉल्ड एज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स। वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर 50 to 90% सेल का वॉल्यूम वैक्यूल स्टोर करता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। एक बार हम वैक्यूल का स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लेते हैं, सो इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। चलो, नाउ सी, दिस इज द वैक्यूल। ये आप देख रहे हो पूरा एक प्लांट सेल है फॉर एग्जांपल, और इसके बीच में लिखा है सेंट्रल वैक्यूल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अराउंड 70% ऑफ द सेलुलर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल ओनली, ठीक है। अब इस वैक्यूल के अंदर क्या स्टोर होता है? वैक्यूल के अंदर आता है सेल सैप। सेल सैप का मतलब होता है जो भी लिक्विड कंटेंट भी स्टोर कर सकता है, फ्लूइड स्टोर कर सकता है, कुछ कुछ सॉलिड पार्ट भी स्टोर कर सकता है, तो हेंस हम उसको नाम दे देते हैं सेल सैप, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्लियर? एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है या फिर एब्सेंट होगा, लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं, सो इट इज़ द वैक्यूल ऑक्यूपाइज द मेजर पार्ट ऑफ द सेल। 50 to 90% स्पेस वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, क्लियर। और जो भी वैक्यूल स्टोर करता है उसको हम नाम देते हैं सेल सैप, ओके। देन यू आर सीइंग द टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या होता है? इट इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। मतलब वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, उसकी मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया टोनोप्लास्ट, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका लिखा है, दे आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। चाहे वो सॉलिड भी स्टोर कर सकता है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में भी और लिक्विड के फॉर्म में भी, ओके। दे आर स्मॉल इन एनिमल सेल्स, और इधर इट कैन बी एब्सेंट ऑल्सो, बट दे आर वेरी लार्ज इन केस ऑफ प्लांट सेल। कितने लार्ज? कि दे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, ठीक है। और जो भी चीज़ वैक्यूल स्टोर करता है, जो भी चीज़ वैक्यूल स्टोर करता है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल सैप। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, इट इज़ कॉल्ड एज सेल सैप, एंड सेल सैप इज़ द नॉन लिविंग कंपोनेंट। सेल सैप इज नॉन लिविंग कंपोनेंट,
ओके, एंड व्हाट इज सेल सैप? द स्टोरेज पार्ट ऑफ द वैक्यूल। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के दे देता हूँ। ओके, स्टोरेज पार्ट ऑफ वैक्यूल इज सेल सैप, जो भी वो स्टोर कर रहा है, एंड सेल सैप इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, नाउ इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। अगर वैक्यूल पूरा फूला हुआ है, अगर पूरा फुल है, सेल सैप पूरा फुल है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब होता है कि वो सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए हमेशा फूला रहेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप अभी मॉर्निंग के टाइम पे लीव्स आप देखते हो पूरी खुली हुई होती हैं, लेकिन जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती है, जैसे जैसे उसके अंदर पानी की कमी होती है, तो सेल लीफ क्या करती है? पानी को छोड़ना शुरू करती है, स्टोमेटा बंद करती है और रोल कर देती है, छोटा हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्लियर? इन द सेम मैनर वैक्यूल के अंदर जब तक सेल सैप पूरा रहेगा तो वो सेल की टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मतलब उसको स्वेलअप करके रखेगा, फुला के रखेगा, और उस फूलने की वजह से उसकी सेल की शेप को जो है वो मेंटेन रह पाती है। तो वो क्या करता है? एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ में एक टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी कभी कोई पिगमेंट भी स्टोर करता है, कुछ प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, शुगर्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, जो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको काम करने के लिए भी और उसको बनाने के लिए भी, वो सब सेल के अंदर सेल सैप के फॉर्म में वैक्यूल स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे मेनी सब्सटेंसेस ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। ओके, दीज includes amino acids, sugar and various organic acids and some proteins. Okay, अब जब हम बात करते हैं, ये तो हो गया प्लांट सेल विच इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, जैसे अमीबा, उसके अंदर फूड वैक्यूल फूड आइटम स्टोर करता है दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम। जैसे ही अमीबा ने खाना खाया, अमीबा कैसे खाना खाता है? स्यूडोपोडिया बना के। ठीक है, तो अमीबा ने जैसे ही खाना खाया, वो क्या करता है? वो उस खाने को स्टोर करता है और फूड वैक्यूल बना के अपने अंदर रख लेता है, और जैसे जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है उस फूड वैक्यूल के अंदर चीज़ों को ब्रेक डाउन करेगा और वहाँ से एनर्जी ड्राइव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आर देयर। ठीक है, दीज स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। ओके, सो दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। इसको हम बोलते क्या है कि द वैक्यूल हेल्प्स इन, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, वैक्यूल हेल्प्स इन osmoregulation. What is osmoregulation? Osmoregulation is balance of salt and water in cell. This is osmoregulation and excretion. Excretion मतलब वेस्ट को रिमूव करना बॉडी से। तो कुछ कुछ जगह पे वैक्यूल ये दो इंपॉर्टेंट और काम करता है, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से सेल को बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द वैक्यूल। आपने 3 ऑर्गेनेल पढ़ लिए। अब हर एक सेल, ईच सेल डज एक्वायर्ड स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन अ स्पेसिफिक वे। दैट इज़, हर एक सेल के पास जो उसकी एक प्रॉपर्टी आती है वो किसकी वजह से आती है? एक तो उसके स्ट्रक्चर की वजह से, और दूसरा उसके ऑर्गेनेल्स किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं स्पेसिफिक वे में। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक सेल की जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो वो किसकी वजह से? उसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन की वजह से प्लस उसके ऑर्गेनेल्स की वजह से। ठीक है, दस द सेल हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक सेल के पास एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होना चाहिए, साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए। ये हो गया एक जनरल, न्यूक्लियस भी होना चाहिए एक जनरल सेल को सेल बोलने के लिए। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के पास जब हम आते हैं तो उसके पास बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, लाइक प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ईआर, गोल्गी एपरेटस, ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स वहाँ प्रेजेंट हैं। हर एक ऑर्गेनेल वहाँ पे एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। हेंस वी कैन से दैट अ सेल शोज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कैसे? कि अगर मुझे प्रोटीन बनाना है तो कौन बनाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
पैकेजिंग करना है तो कौन करेगा? गोल्गी एपरेटस। एटीपी बनाना है तो कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोसिंथेसिस करना है, फूड बनाना है तो कौन बनाएगा? प्लास्टिड्स। तो हेंस एवरी ऑर्गेनेल इज परफॉर्मिंग इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से सेल के पास बहुत सारे फंक्शंस करने की कैपेसिटी आती है। लाइक फॉर एग्जांपल जो आपके बुक में लिखा है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, clearing of waste and forming new proteins. So because of these various organelles, a cell is able to perform all these functions. Hence हम cell को बोलते हैं the fundamental structural unit of living organism, and it is also the basic functional unit of life. Okay, so this was about the today's class. Next class में हम ये chapter ख़त्म कर देंगे. Start preparing this chapter because very soon there will be a test for this chapter. ठीक है, तो प्लीज़ आप पढ़ना शुरू कर दो, याद करना शुरू करो, और जो जो क्वेश्चंस आपको इन टेक्स्ट दिए हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस आर गिवन हियर, 4 क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट डाउन दीज क्वेश्चंस इन नोटबुक एंड सेंड टू मी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेल डिवीजन करेंगे और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. ओके देन, चलो बाय बाय.